فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة۔ ہر ایک گل میں ہے رنگ ان کا، زبان بلبل پہ ان کا نغمہ، ہر ایک گل میں ہے رنگ ان کا، زبان بلبل پہ ان کا نغمہ، زبان بلبل پہ ان کا نغمہ ہے، سب کی آنکھوں میں نور ان کا ہے، سب کی آنکھوں میں نور ان کا، وہ سب کے دل میں مقیم بھی ہے۔ اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ جی میرا نام عرفان خان ہے، انڈیا سے بول رہا ہوں میں، اور میری بیوی کا نام لبنہ روشی ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے زینت پروین۔ ہم لوگوں کی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں اور 6.5 سال سے وہ ان کی طبیعت خراب ہے بیوی کی، تو استخارہ کر کے ان کا حل بتائیں۔ میری بیگم ہے، ان کا رائٹ ہینڈ درد کرتا ہے۔ میں انڈیا راجستھان جودھپور سے بول رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا بیٹا، اس کا نام ہے جنید ریاض، والدہ کا نام ہے زبیدہ بی بی۔ اس کی ابھی تک شادی کا مسئلہ ہے، کوئی رشتہ اچھا مل نہیں رہا، یا کوئی رکاوٹ ہے، یا کیا کریں؟ یہ آپ استخارہ کر کے بتائیں۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے تب، اگر نہیں ہے تب، یا ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ ہمارے لیے بہتری کرے۔ جی میرا نام عبداللہ رشید ہے، میری والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے، اور میں کام کے لیے طرف جانا چاہتا ہوں، تو اس کے بارے میں استخارہ کر کے بتائیں کہ کیسا رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہمارے عرفان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں اور 6 سال سے گھر والوں کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات کوئی اثرات کا تو اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں فی الوقت بیماری اور نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر والوں کو ان بیماری پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائیں۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں۔ آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو، اللہ تعالیٰ کے صفات نام ہی یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، ہند سے آپ نے قول کیا، آپ نے کہا کہ میری زوجہ کا سیدھے ہاتھ میں ان کے بہت درد رہتا ہے، بہت تکلیف رہتی ہے، تو درد کا روحانی علاج سماعت فرمانے۔ سیدھے ہاتھ میں درد ہے، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو، ایک مرتبہ آپ کے گھر والے یا مغنیو اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھ کر اپنے الٹے ہاتھ پہ دم کر کے سیدھے ہاتھ پر پھیر لیں، درد کے مقام پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل درد میں کافی حد تک افاقہ ہو جائے گا اور ان کی یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد صادق آباد سے ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا بیٹا اس کی شادی میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، جنید نام آپ نے بتایا تھا، تو آپ کے بیٹے کا استخارہ کر دیا ہے، استخارے میں بظاہر کوئی رشتوں کے حوالے سے کوئی بندش کا اشارہ نہیں آیا اور کوئی نظر بد کا اشارہ نہیں آ رہا، صرف قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقتی طور پر آزمائش ہیں، کوشش جاری رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح رشتے عطا فرمائیں۔ رشتوں کے حوالے سے آپ بھی روحانی علاج سماعت فرما لیں، اور یہ روحانی علاج ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہو وہ خود اس پر عمل کریں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا یا کسی اور کی طرف سے اس روحانی علاج پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ جسے شادی کرنی ہو، جس کی شادی میں رکاوٹیں ہوں، جس کے رشتے کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں، جن کے رشتے ٹوٹ جاتے ہوں، جن کے رشتوں کی بات نہیں بن پاتی ہے، وہ خود اس روحانی علاج پر عمل کریں۔ وہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں، رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ سورہ اخلاص 41 مرتبہ آپ پڑھیں، پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تصاویر اور تمام گناہوں سے بچیں گے۔ اس نیت کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کیجیے، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے، 90 دن تک مسلسل آپ اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل رشتے میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گے، نیک صالح رشتے نصیب ہوں۔ عبداللہ رشید بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں عرب شریف جانا چاہتا ہوں، کسی کام کے سلسلے میں جانا کیسا ہے؟ آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے جائز کاموں میں برکتیں عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا۔ حاجی بلال کی آواز منقبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا دیں۔ آج تو الحمدللہ عز و جل 21 رمضان المبارک ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا یوم شہادت بھی ہے، تو چلیں آج یہ موقع کی مناسبت سے آپ کی یہ فرمائش پوری کرتے ہیں۔ یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، ہے شہید با وفا، ہے شہید با وفا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل
مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی ہے یہ قول مصطفیٰ ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا نگران شورا کا سلسلہ عبرتناک خبریں، اس کی فرمائش کی تھی ایک اسلامی بھائی نے، تو آئیے پہلے ہم ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ کب کس وقت کون سی پریشانی، کون سی مصیبت، کون سی آفت ایسی آ جائے جو نہ صرف ہماری زندگیوں کے چراغ کو بجھا دے بلکہ ہماری ہری بھری کھیتیوں کو ویران کر دے، ہمارے مکانات کو تہس نہس کر دے، ہمارا سب کچھ اجڑ جائے۔ یہ بات جو سمجھنے کی خاص حاجت ہے وہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، ہم دنیا میں ہیں، محتاج ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، اپنی پھوٹ ہاں اور میں کی زندگی سے کچھ حاصل نہیں۔ کوئی تیز آندھی، کوئی تیز ہوا ہمیں کہاں کے کہاں اڑا کر ہلکی سی زمین کی جنبش ہمارا کام پورا کرتا ہے۔ سمندر کا بہتا پانی جہاں پر ایک تعداد تفریح کرنے جاتی ہے، کیسا پانی چل رہا ہوتا ہے، کیسا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اس کی اونچی نیچی نشیب و فراز والی یہ موجوں سے کس قدر مطلب لوگ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اپنی دائرے کار پہ چلتا ہوا پانی حکم پاتا ہے، اٹھتا ہے، اپنی حدود سے نکلتا ہے اور بستیوں کی بستیاں اپنے ساتھ لیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت شہر، ملبے کا ڈھیر، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں عبرت نہیں لیتے۔ عادل اتاری بھائی باب المدینہ سے ان کا میسج موصول ہوا۔ عادل بھائی کہہ رہے ہیں خلیل بھائی کی آواز میں یہ کلام مجھے سنا دیجئے۔ سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تو نے نیند نکالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو۔ بات نمبر
नमाज ज़ोहर अपनी नमाज को दुरुस्त करने के लिए आपने देखा सिलसिला। फ़राइज़ उलूम 3 तरह के हैं और उनमें अक़ाइद इस्लामिया का जानना, मसाइल शरइया ज़रूरिया का जानना और मुहलिकात व मुंजियात, ऐसी बातें जो बातनी बातें हैं, हसद है, तकब्बुर है, पोशीदा छुपी हुई दिल से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी बातें जिनसे दिल को पाक होना ज़रूरी है, ऐसा इल्म कि जिससे दिल पाक हो सके, इनकी ज़रूरी मालूमात, इनकी तारीफ़ात का इल्म, और ऐसी चीज़ें जो दिल के लिए ज़रूरी हैं, इखलास, ईसार, सखावत, ये सारी चीज़ें इनको जानना और इनको हासिल करने का तरीक़ा ऐसा इल्म कि जिसके ज़रिए बंदा सखावत की तरफ माइल हो, ईसार की तरफ माइल हो, इखलास की तरफ माइल हो, ये सब ज़रूरी उलूम में शामिल है। और मसाइल हलाल व हराम, क्या चीज़ हलाल है हमारे लिए, क्या चीज़ हराम है, खाने के एतबार से हो, पहनने के एतबार से हो, रहने के एतबार से हो, कारोबार के एतबार से हो, निकाह के हवाले से हो, ये सारे मसाइल हलाल व हराम भी इल्मुल मसाइल में आते हैं। इल्मुल मसाइल में उमूमी फ़राइज़ उलूम में से नमाज के फ़राइज़ उलूम आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो बयान फरमाए वो शराइत फ़राइज़ का इख्तियार करना और मुफ़सीदात से बचना। शराइत फ़राइज़ कहते हैं वो बातें जो नमाज के लिए ज़रूरी हों। शराइत, नमाज से पहले जो बातें ज़रूरी हैं कि बे इसके नमाज होती ही नहीं। फ़राइज़ वो बातें जो नमाज में ज़रूरी हैं कि अगर ये चीज़ें ना पाई जाएं तो नमाज होती ही नहीं। और तीसरी चीज़ मुफ़सीदात, नमाज तोड़ने वाली बातें। अगर किसी ने मुफ़सीदात कर लिया तो उसकी नमाज होती ही नहीं। शराइत व फ़राइज़ को पूरा करना और मुफ़सीदात, नमाज तोड़ने वाली बातों से बचना फ़र्ज़ है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फ़राइज़ उलूम में नमाज के हवाले से ये 3 चीज़ें शुमार की। एक होता है नमाज का हो जाना। नमाज का हो जाना यानी हम ये कहेंगे कि इस सूरत में नमाज क़ज़ा नहीं हुई। नमाज क़ज़ा नहीं हुई ये तो आपने कह दिया, लेकिन क्या नमाज गुनाहों से भी पाक हुई? क्या नमाज के अंदर नमाज कामिल मुकम्मल हो गई, या नमाज की कोई ऐसी खामी तो नहीं रही कि नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी? ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ शराइत व फ़राइज़ पूरे कर दिए तो इससे ये तो कहा जाएगा कि नमाज क़ज़ा नहीं हुई, लेकिन इसमें ऐसी सूरतें ज़रूर आएंगी कि बंदा नमाज पढ़ने वाला गुनाहगार होगा, और बल्कि ऐसी सूरतें भी आएंगी कि इसको दोबारा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाएगा। तादील अरकान का अमली तरीका भी बापा का देखते हैं। अब तस्मीर कहते हुए उठना है, यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदह, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। समी अल्लाहु लिमन हमिदह, इसको तस्मीर बोलते हैं, और अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द इसको तहमीद कहते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द अफजल तरीन है। इससे कम दर्जा रब्बना लकल हम्द ये भी कह सकते हैं। बेहतर ये है रब्बना वलकल हम्द कहें, और बेहतरीन यानी सबसे अफजल ये अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहें। खड़े हुए रुकू के बाद इसको कौमा कहते हैं। कौमे में पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बाज़ लोग रुकू से बराबर खड़े नहीं होते, फ़ौरन यानी इस तरह जैसे रुकू में गए और फिर यूँ करके सजदे में चले जाते हैं। तो ये गलत तरीका है और इससे नमाज नाक़िस हो जाएगी, क्योंकि कमर सीधी रखकर खड़ा होना वाजिब है। ये आपने तादील अरकान में कौमे का तरीका देखा था, आइए अब जलसे का तरीका देखते हैं।
अल्लाहु अकबर। दोनों सजदों के दरमियान, क्योंकि दोनों ही सजदे फर्ज हैं, इनके दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। और इसमें कम अज कम एक सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार सीधा बैठना वाजिब है। अगर फ़ौरन सजदे में चले गए तो तर्क वाजिब होगा। जैसे बाज़ लोग सीधा नहीं बैठते, यानी मैं उस गलत अंदाज का अमली तरीका आपको बताता हूँ। जैसे ये सजदे से उठे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इस तरह लोग जल्दी में करते हैं, तो ये गलत तरीका, वाजिब तर्क होगा और नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा हो जाएगी। जलसे के दरमियान अगर चाहें तो अफजल है ये पढ़ लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। तो जलसे में जब अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह लेंगे तो खुद ब खुद एक सुबहान अल्लाह की मिक़दार बैठना भी हो जाएगा। जब सजदे से उठेंगे, एक सजदा करने के बाद जब उठेंगे तो उल्टे पाँव पर जोर देंगे और सीधे पाँव का पंजा इस तरह खड़ा करें कि इसकी उंगलियां किबला रू रहें, और उल्टा पाँव बिछा कर उस पर इत्मीनान से बैठे और कम अज़ कम एक सुबहान अल्लाह की मिक़दार बैठे रहें। जल्दी से बाद लोग सजदे में चले जाते हैं और एक सुबहान अल्लाह की मिक़दार नहीं बैठते, तो इस तरह तर्क वाजिब होता है और ऐसी नमाज दोबारा लौटानी वाजिब होती है। फिर आपने मुलाहजा किया, तिलावत और नात के बाद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया का उम्मत पर गौर अफशानी से लबरेज मदनी मुज़ाकरा। गम और खुशी दोनों एक साथ आए तो इनका किस तरह इजहार करना चाहिए? तो ये तो वही आता है, रमज़ान शरीफ का जब रुखसत होती है तो ये तो जिनको होता है उनको गम होता है। फिर ईद का दिन आता है तो गम की कैफियत होती है जिनको होती है। लेकिन अब खुशी का इजहार सुन्नत है, उस वक्त खुश होना सुन्नत है ये नहीं लिखा, खुशी का इजहार सुन्नत है। तो चाहे दिल में कैफियत गम की है लेकिन ईद के दिन खुशी का इजहार करें, तो गम अंदर में रहा, खुशी बाहर रही। ये एक सूरत समझ में आती है कि गम भी हो गया और खुशी भी हो गई। लेकिन वो ईद का दिन जो है वो जैसे ईद का दिन गुरूब आफ्ताब पर ख़त्म हो जाएगा, अब वो गम का इजहार हुआ तो कोई हर्ज नहीं। और इसी तरह खुद ब खुद इजहार हो गया जब भी कोई हर्ज नहीं है ईद के दिन। और चांद रात है उसमें गम का इजहार करने में कोई हर्ज नहीं है, यानी ईद का चांद नज़र आ गया तो वो अभी ईद तो नहीं आई ना, चांद रात है ना, अभी तो ईद तो दिन को आएगी। तो इसलिए वो दिन को ईद के चूँकि खुशी का इजहार सुन्नत है, इसलिए कसदन गम का इजहार ना किया जाए बल्कि खुशी का इजहार करे सुन्नत पर अमल करने की नीयत से। अब जिससे बन नहीं पड़ता खुशी का इजहार तब वो ज़रा वो लाचार है, मजबूर है, गुनाहगार तो फिर भी नहीं है। अगर कोई खुशी का इजहार नहीं करता तो उसका गुनाहगार नहीं कहेंगे, इसलिए कि ये काम मुस्तहब है, वो सुन्नत है जो मुस्तहब है। अगर अमल नहीं करेगा गुनाहगार नहीं होगा, तो जी नहीं चाहता तो क्या करे, ज़बरदस्ती इजहार करे तब भी अच्छी बात है, करना चाहिए। इसी तरह ईद का दिन भी आ गया और घर में मैयत भी हो गई, तो अब ईद के दिन मैयत हो गई तो ये सोग का दिन है। और अगर कोई वाकई प्यारा चला गया, एक तो है कि वो पर नानी या पर दादी चली गई तो फिर तो गम होना मुश्किल है, नानी दादी में भी गम नहीं होता अक्सर, बल्कि माँ बाप में भी शादीशुदा लोगों को गम कम होता है। बाल बच्चे भी बड़े हो गए, माँ बूढ़ी या बूढ़ा है तब भी इतना गम नहीं होता। अब वो ईद का दिन भी है तो भाई क्या करें, खुशी का इजहार सुन्नत है और यहाँ गम का दिन भी है, इसके लिए तो 3 दिन सोग की कैफियत सब पर। तो अब जब बूढ़ा आदमी घर से चला जाता है तो इसमें भी दिखावा होता है सोग का, कोई आए तो मुँह रोने जैसा बनाता है। क्योंकि मुझे ये तजर्बा है कि बाद लोग बूढ़ों के बारे में, इस तरह के मरीज़ों के बारे में जिससे तंग आ गए होते हैं ना, कहते हैं दुआ करो अल्लाह इसकी मिट्टी ठंडी करे। आपको भी बोलते होंगे अगर, मुझे तो तजर्बा है। ऐसे जब मैं
अब तो खैर मुझ तक ऐसे लोग पहुंच नहीं पाते, कम है। यूँ कहते हैं अल्लाह इनके लिए आसानी कर दे, आसानी करे, मिट्टी ठंडी करे। अब वो मतलब जब अल्फाज बदल गए होंगे, बात मिलती जुलती है। आसानी करे ने मतलब है कि जल्दी ये जाए, बस अमूमन ये होता है कि अब ये जाए, वो इसका इस्तिंजा वो सब करवाना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है बूढ़ों की। बाद औक़ात ना इतना पैसा होता है कि नौकर रख दें, और नौकर रखें तब भी तकलीफ होती है। देख देख कर दिल जलता रहता है अपने बूढ़े माँ बाप की बीमारी को। तो ये जल्दी जाए ताकि हम मतलब खुल के खेल सकें। एक उदेड़ उम्र के शख्स को जब इसके बाप की मैंने ताज़ियत की ना, ये मुझे एक यादगार वाक़या है। तो उसने इस अंदाज से मुझे देखा और वो जैसे अल्फाज बोले, मैं मतलब वो अल्फाज मतलब रूखे से अल्फाज बोले, अब वो अल्फाज याद नहीं है पूरे मुझे। यानी इस तरह मतलब है ना कि मैंने उसका यानी कि अंदाज़ा लगाया कि बड़ी मुश्किल से बुढ़े बाप ने जान छोड़ी है। क्या आप ये चाहते हैं कि वो दोबारा मेरे गले पड़ जाए? यानी ये मैंने मुबालगा करके अपना कि उसको मतलब मेरे ताज़ियत करने से शायद कुछ यानी कि वो मज़ा नहीं आया, ऐसा मुझे यूँ लगा। तो ऐसा भी होता है। तो अब वो शौक़ कहाँ से, उसको गम है ही नहीं। इसी तरह सास बहू के झगड़े जब होते हैं ना, और उरूज बाम पर होते झगड़े, और वो सास फौत हो जाती है, बहू को तो क्या गम होगा, उसके बेटे को भी, सगे बेटे को भी फिर गम होना बहुत मुश्किल होता है कि यार अब बोलेगा ज़बान से नहीं, लेकिन माँ ने जीना आराम कर रखा था, दिल में ये होता है। तो ऐसी सूरत में गम नहीं होता। अब वो ईद के दिन ये वाक़या हुआ, लेकिन खुशी का इज़हार करेगा तो लोग इसको बुरा भला कहेंगे, ये एक बात है। तो इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल में रखे, ठीक है ना। और अब दिल में ईद की खुशी है तो होने दी जाए, तो अर्ज क्या है। गम का माना बापा ये नहीं ना कि वो नोहा करें या चीखें चिल्लाएं, वो हम हिदाद कहते हैं अरबी में इसको। वो भी ज़्यादा ज़्यादा ये होता है कि वो औरत के लिए होता है, वो ज़ीनत ना करे, घर से बाहर ना निकले। तो अगर वो सादा सी कैफियत में रहते हैं तो ना इनके पर को तान करेगा और ना ही कोई मसला होगा। अच्छा, इसी तरह वो जैसे कि रमज़ान शरीफ में इंतकाल हो गया या शाबान में इंतकाल हो गया, पहली ईद नहीं मनाई जाती, ये एक आम रवाज है। बकरीद आए तो कुर्बानी भी नहीं करते बाज़, या कुर्बानी का वकील कर देते हैं। अब थोड़ी समझ आ गई है कि कुर्बानी वाजिब है तो करनी पड़ेगी, तो बाद लोग वकील कर देते हैं, दूसरे को मतलब कुर्बानी की इजाज़त दे देते हैं, या इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा ले लेते हैं। अपने घर पे वो सोग की कैफियत रखते हैं। तो इस तरह 3 दिन के बाद सोग मनाना ये हराम है, ये ज़हन में रखिएगा। 3 दिन से ज़ायद सोग हराम है औरत के लिए। अलबत्ता वो इद्दत जो है वो सोग ही है बीवी के लिए, सिर्फ बीवी के लिए, औरों के लिए नहीं। तो ये ईद सोग की वजह से ना मनाना फिर ये हराम हो गया। वैसे ईद की खुशी नहीं जाहिर करता तो अमर मुस्तहब का खिलाफ किया इसने, लेकिन सोग की वजह से उसने ऐसा किया तो ये हराम है। ये मसला याद रखें। ये तकरीबन हमारे यहाँ जहाँ भी हम मैयत होती है वो ऐसा करते हैं। पहली ईद आई तो ईद नहीं मनाएंगे, सोग करेंगे, रिश्तेदार आएंगे और मिलेंगे, ताज़ियत करेंगे, कोई बाज़ों का दुरूने धोने का भी एहतमाम होता होगा। इस तरह बकरीद आएगी तब भी यही कैफियत, कुर्बानी नहीं करेंगे और मुंह चढ़ाएंगे और गम का माहौल बनाएंगे। तो इसकी शरीयत में बिल्कुल मुमानत है, ऐसा नहीं करना है। ये बच्चों को भी इस वक्त समझाया जाता है कि देखो बेटा जाकर ईद मुबारक मत बोलना। हमें याद है पापा, ईद मुबारक नहीं बोलना और ऐसे ही रहना, क्योंकि इनकी अमैयत हो गई थी ना, तो इनके यहाँ ईद मुबारक नहीं बोला हुआ था। तो ईद मुबारक ना बोलने पर बाकायदा जहन बनाया जाता है कि जिनके मैयत हुई उन अहले मैयत को जाकर ईद मुबारक मत देना। हाँ, तो ये एक जहन, क्योंकि बचपन से ही ये जहन बनाया जाता है, तो फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी भी सोच उसी तरफ होती है कि ऐसा होगा। दूसरा जो आप इरशाद फरमा रहे हैं, क्या इसका हम ये नतीजा ये निकालें कि शरीयत मतलब इस्लाम ने जिस वक्त जिस घड़ी जिस कैफियत को मशरू किया, यानी कि वो पसंद किया, महमूद रखा कि इस वक्त इस घड़ी इस कैफियत का होना शरीयत को पसंद है, तो बंदा
के मुताबिक खुद को ढाले। ज़ाहिर हम तो शरीयत के पाबंद है ना, रस्म और रवाज के पाबंद तो नहीं है ना। ये रस्म और रवाज बन गए अब बहू भी बेचारी आजमाइश में होती है। सास ने मुस्कुराएगी तो सुख का सांस नहीं लेने दिया जिंदगी भर, अब गई तो अब बहू को गम कहाँ से आएगा, लेकिन उसको मुंह भी फुलाना पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा, जान जान के रोएगी और आवाज़ से रोना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे ए खुशी हो गई इसको, इसकी जान छुट्टी है, खुशी बना रही है। ये तो बेचारी पिसेगी, सही की पिसेगी। लेकिन अगर खुशी नहीं, अगर बिलफर्ज को गम नहीं भी हुआ तो उससे खुशी का इजहार करने का तो मौका ही नहीं है ना। इसके लिए फसाद खड़ा हो जाएगा। मगर 3 दिन से ज़्यादा तो सोग हराम है, ये सब ज़हन में रखें, सिवाय बीवी के कि बीवी की इद्दत है 4 महीने 10 दिन और 130 दिन। अगर पहली इस्लामी तारीख को इंतकाल हुआ है शौहर का तो 4 महीने 10 दिन ये इद्दत करेगी, सोग मनाएगी। और अगर पहली तारीख के अलावा इंतकाल हुआ है तो 130 दिन ये सोग मनाएगी। और वो 4 महीने 10 दिन का जो कहा पहली तारीख के हिसाब से, तो पहली तारीख भी इस्लामी और 4 महीने और 10 दिन वो भी इस्लामी तारीख के हिसाब से सोग करना है। फिर आपके लिए पेश किया गया सिलसिला असबाक़े तसव्वुफ। 2 कॉन्सेप्ट में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमें फ़र्क करना पड़ेगा जी। एक है कि इल्म होना और एक है कि नूरे इल्म का होना, दोनों की कैफियत में फ़र्क है। और अगर ये दोनों मिले तो समझे नूर अला नूर, नूर अला नूर, मदीना मदीना। तो ये अच्छा, अब आपने हमें ये बात समझाई कि ऐसा हो सकता है कि दीनी इल्म की तरफ बढ़े लेकिन जो उसकी नीयतें हैं वो उनमें फसाद हो, बिगाड़ हो, तो नुकसान होने का। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्याउल उलूम की जो पहली जिल्द है जी जी, उसमें इल्म का बाब बहुत वसी है। ठीक है, तो एक बाब तो इस बाब के अंदर मज़ीद चैप्टर्स हैं, जी जी हिस्से हैं, ठीक है। तो कई फसलों में तो मुज़म्मतें हैं कि जो दीन का ही इल्म हासिल करते हैं जी जी, उनकी मुज़म्मतें हैं, मतलब रियाकारी के लिए करते हैं। अल्लाहु अकबर। मतलब आपने वो हदीस सुनी होगी कि एक हाफिज को लाया जाएगा, सही कारी को जी, मशहूर, ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसे घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा। आलिम को लाया जाएगा, उसकी रियाकारी के लिए उसने इल्म हासिल किया, उसे घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा। तो एक शख्स दीन का ही इल्म हासिल कर रहा है, एक तो ये कि उसका मकसद अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करना है ही नहीं। जी जी, आप देखें इस्लामियात के प्राइवेट स्टूडेंट आपको मिलेंगे, अव्वल तो उनका निसाब ही कोई ऐसा नहीं होता, और दूसरा होता है तो उनका मकसद जो है वो सिर्फ डिग्री हासिल करना होता है। सही। बल्कि यहाँ तक अफसोसनाक वाक़यात मिलते हैं कि जी इस्लामियात का पेपर देने जा रहे हैं और वो गाइडें छुपाई हुई हैं शलवारों के अंदर, बाथरूम में जाकर जनाब नकलें मार रहे हैं। तो क्या इनका जो मकसद नीयत थी वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना, एग्जैक्टली रज़ा हासिल करना होती तो ये हरकतें अल्लाह इल्म की अज़मत को भी पहचानते और फिर पढ़ते भी उसी तरीके से। ये नहीं कि आज कल पेपर, आज थोड़ा सा देख लिया, पेपर देकर आ गए। सही। नियतों का हाल अल्लाह ताला जानता है और सब बराबर नहीं होते होंगे, ठीक, लेकिन जो ज़ाहिरी सूरत नज़र आ रही है गालिब तौर पर, सही सही, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। माशाअल्लाह। फिर क्या होता है कि बाज़ लोग इल्म, दीन का इल्म मनसब हासिल करने के लिए हासिल करते हैं, मनसब हासिल करने के लिए कि भाई मैं फलां पोस्ट है दीन के नाम पर, जी जी, मतलब दीनी डिग्री हो तो फलां पोस्ट मिलती है, वो पोस्ट इसको हासिल करनी है, इसलिए जो है वो ये पढ़ रहा है। तो इसने अल्लाह की रज़ा के लिए तो नहीं पढ़ा। सही। या एक तो सरकारी नौकरी होगी ना, जी जी, या कोई टाइटल है, सही, जनाब इस टाइटल की वजह से शोहरत मिलती है, तो हुब्बे जाह के लिए इसने पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला के लिए तो नहीं पढ़ा। पहले ज़माने में ये होता था कि दुनियावी उलूम और दीनी उलूम एक साथ होते थे, ठीक, तो बादशाह के दरबार में जो है वो लोग आया करते थे और आके अपने इल्म फ़न का मुज़ाहरा करते थे। ठीक है। किताबों में लिखा गया कि बहुत सारे लोग इसलिए इल्म हासिल करते थे कि सलातीन के दरबार तक रसाई हासिल करें।
अच्छा, वहाँ थोड़ी अप्रोच हो जाएगी, बादशाह के दरबार में बैठेंगे और सोर्स बन जाएगी, वहाँ जाके बैठते हैं और ये मामला होता है। सही है, सही है। बाज फिर ये भी होता है कि बाज लोग सलातीन की चापलूसी के लिए इल्म हासिल करते हैं। ओके। और इल्म के जो महरूमी के असबाब बयान किए गए हैं ना, जी जी, उनमें यह है कि इल्म तो हासिल कर लिया किसी ने, ठीक है, लेकिन इसका ऐसे नफ़ा नहीं मिलेगा। उसमें एक सबब ये भी मैंने पढ़ा है किसी किताब में, जी जी, तालिमुल मुतल्लिम में ही लिखा हुआ है कि ऐसा शख्स जो है वो सलातीन की चापलूसी में ज़िंदगी गुजारेगा। या अल्लाह। मतलब एक तो इल्म पढ़ने वाला वो है कि जो इल्म पढ़ा रहा है, सही है, इसके इल्म से लोगों को नफ़ा मिल रहा है, ठीक है, इल्म से नफ़ा मिला, लोगों ने अमल किया, इसने अमल किया, इसका कल्ब रोशन हुआ, लोगों को फ़ायदा हुआ। और एक वो है जो इल्म तो है उसके पास, लेकिन वो सलातीन की खुशनुदी कर दे। भाई अकबर बादशाह ने दीन अकबरी ईजाद किया, किसी ने तो बना के दिया होगा। ओके, हाँ, कोई तो ड्राफ्ट बनाने वाला होगा, कोई तो ड्राफ्ट बनाने वाला होगा ना। जी, जी। आज भी ड्राफ्ट बनते हैं। सही है। तो इल्म होना असल नहीं है, इल्म नाफे होना असल है। माशाअल्लाह। इल्म नाफे होना, यह हमने एक अल्लाह ताला के वली कामिल के अल्फाज बयान किए। जी जी। तो क्या इसकी कोई असल है? क्या अहदीस में भी इस तरह की तकसीम कुछ है? कुछ हमें वहाँ से इशारा मिलता है? बहुत सारी रिवायतों में इल्म नाफे के हवाले से मज़ामीन मिलते हैं। लब्बैक लब्बैक। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ मांगते, सरकार दुआ मांग रहे हैं, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि। ये भी दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। ए अल्लाह, मैं उस इल्म से पनाह मांगता हूँ जो नफ़ा नहीं देता। आमीन। मिन कल्बिन ला यख्शा, उस कल्ब से जिसमें खशियत नहीं। अल्लाहु अकबर। मिन नफ्सिन ला तशबा, उस नफ्स से जिसका जी नहीं भरता। आमीन। मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा, उस दुआ से जो कबूल नहीं की जाती। आमीन। तो इल्म नाफे यानी वो उस इल्म से पनाह मांगी गई जो नफ़ा बख्श नहीं है। एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया, जी जी, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर ये दुआ मांगी, जी जी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। ए अल्लाह, मैं तुझसे इल्म नाफ़े का सवाल करता हूँ और मकबूल अमल का सवाल करता हूँ और पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करता हूँ। इसके बाद पेश किया गया शरई रहनुमाई के लिए सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। एक तभी तकाज़ा है, बाज़ औक़ात इंसान जो है वो बीमार हो जाता है और बाज़ औक़ात इतना शदीद बीमार हो जाता है कि अब उसको चेकअप के लिए, इलाज मुआलजे के लिए हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। अब मोतकिफ़ है, सुन्नत एतिकाफ़ उसने किया हुआ है और ऐसा मर्ज़ है कि उसको मस्जिद से बाहर किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तो वो क्या करे और इसके लिए एतिकाफ़ का क्या हुक्म होगा? एतिकाफ़ के अंदर ऐसी बीमारी के जो मस्जिद में ही रहकर जिसका इलाज मुआलजा हो सके, जैसे दर्द सर, बुखार वगैरह, तो इन छोटी बीमारियों का इलाज बंदा मोतकिफ़ मस्जिद में भी रहकर कर सकता है। जी। तो जहाँ ऐसा मुमकिन है तो वहाँ बिला उज़र अब मस्जिद से बाहर जाना होगा और इसकी इजाज़त नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अगर बस औक़ात बीमारी ऐसी हो जाती है कि वो एक आदमी का अपने कंट्रोल से बाहर है, ठीक है, और वो बीमारी ऐसी है कि इसको बाकायदा हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, तो अब इस बिना पर मोतकिफ़ को मस्जिद से बाहर जाने की इजाज़त है, लेकिन इसके मस्जिद से बाहर निकलने की सूरत में इसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। ठीक है। अब एतिकाफ़ जब टूट गया तो अब इसको एतिकाफ़ की क़ज़ा करनी होगी। सही। और एतिकाफ़ की क़ज़ा के लिए ये नहीं है कि मसलन आज जैसे 21वां रोज़ा है, किसी को अभी कोई ऐसी इमरजेंसी लाहिक हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो अब ये नहीं कि इसको अब 9 दिन का एतिकाफ़ करना पड़ेगा, या 25वें रोज़े को ऐसा हुआ तो अब बकिया 4 दिन का एतिकाफ़ करना होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जब भी इसका एतिकाफ़ टूटा तो इसको 1 दिन का एतिकाफ़ उसकी क़ज़ा करना इसके ऊपर लाजिम हो जाएगी। तो पूरे 10 दिन का या बकिया दिन जो बाकी रह गए थे उनकी क़ज़ा लाजिम नहीं होती, बस जिस दिन का एतिकाफ़ टूटा उसी दिन का एतिकाफ़ इसके ऊपर 1 दिन का लाजिम हो जाएगा उसकी क़ज़ा करना। और इसको अब इख्तियार है,
اب یہ لازم نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں ہی اس ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ ماہ رمضان کے اگر اس کو ایام مل رہے ہیں تو ان میں وہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر لے۔ اور اعتکاف کی قضا کرنے کا طریقہ آسان ہے کہ یہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلے جائے، اعتکاف